نیوز بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بھارت سے آیا نیا ریلا، راوی، چناب اور ستلج بپھر گئے، سیلابی صورتحال مزید تشویشناک، پی ڈی ایم اے کا الرٹ، دریا چناب کے سیلابی ریلے سے ملتان ڈویژن میں ہر طرف تباہی، ملتان کی بستی چناب چوک میں سیلابی پانی داخل، بیشتر مکانات تباہ، درجنوں کچے گھر گر گئے، دریا کٹاؤ سے کئی دیہات متاثر، مکینوں کا انخلا، شجاعت، ترنڈا محمد پناہ میں غفور آباد کے مقام پر پانی قریبی آبادی اور فصلوں میں داخل، سیلابی ریلا مظفر گڑھ میں داخل، 139 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ، دریا راوی میں ہیڈ ستنائی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، مائی سفورہ بند توڑ دیا گیا، بارودی مواد سے 2 شگاف ڈالے گئے، بند توڑنے سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے، کبیر والا کے مقام پر اولڈ ہیڈ ستنائی پر پانی اوور فلو ہو کر پل پر آ گیا، دریا ستلج میں پانی کی سطح میں خطرناک اضافہ، بہاولپور میں سیلاب سے زمین درہ بند ٹوٹنے سے پانی قریبی بستیوں میں داخل، سیلابی ریلے نے پاسکو سینٹر ساہوکا کو 3 اطراف سے لپیٹ میں لے لیا، 5 ستمبر تک مزید بارشوں کی پیشگوئی، پنجاب میں سیلابی صورتحال میں شدت کا خطرہ، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھارت سے آیا نیا ریلا، راوی، چناب اور ستلج بپھر گئے، سیلابی صورتحال مزید تشویشناک، پی ڈی ایم اے کا الرٹ، دریا چناب کے سیلابی ریلے سے ملتان میں ہر طرف تباہی، سیلابی ریلا مظفر گڑھ میں داخل، 139 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ، 5 ستمبر تک مزید بارشوں کی پیشگوئی، پنجاب میں سیلابی صورتحال میں شدت کا خطرہ، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بھارت سے آیا نیا ریلا، راوی، چناب اور ستلج بپھر گئے، سیلابی صورتحال مزید تشویشناک، پی ڈی ایم اے کا الرٹ، دریا چناب کے سیلابی ریلے سے ملتان میں ہر طرف تباہی، سیلابی ریلا مظفر گڑھ میں داخل، 139 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ، 5 ستمبر تک مزید بارشوں کی پیشگوئی، پنجاب میں سیلابی صورتحال میں شدت کا خطرہ، 5 ستمبر تک مزید بارشوں کی پیشگوئی ہے، پنجاب میں سیلابی صورتحال میں شدت کا خطرہ ہے، سیلابی ریلا مظفر گڑھ میں داخل ہو گیا ہے، 139 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ خوش آمدید، اب آپ کو بتائیں کہ ملتان میں دریا چناب کی سیلابی صورتحال بدستور برقرار ہے، ہیڈ محمد والا اکبر فلڈ بند پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا، جھونک وین سمیت کئی موضوعات زیر آب آ گئے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملتان میں دریا چناب کی سیلابی صورتحال بدستور برقرار ہے، ہیڈ محمد والا اکبر فلڈ پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا، جھونک وین سمیت کئی موضوعات زیر آب آ گئے ہیں، مزید جانتے ہیں سید زہیب بخاری سے۔ آج بالکل دریا چناب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دریا چناب میں جو ہے وہ مسلسل پانی کی سطح میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس سلسلے میں اگر ہم ہیڈ محمد والا کے مقام کی بات کریں تو ہیڈ محمد والا کے مقام پر بھی پانی میں جو ہے وہ آج دوسرے روز ہمیں کافی اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس سلسلے میں جہاں پر پانی جو ہے وہ جھوک وینس کی حدود میں جو ہے وہ ملتان میں داخل ہوا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت بھی ہم جھوک وینس کے مقام پر جو ہے وہ موجود ہیں، اور سینکڑوں بستیاں جو ہیں وہ اس وقت زیر آب آ چکی ہیں، لوگ اپنے گھروں سے باہر جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ پہلے سے ہی محفوظ مقامات پر جو ہے وہ منتقل ہو گئے تھے، اور ان میں سے بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی تھی، تاہم جو مرد حضرات ہیں وہ ابھی بھی اپنے گھروں میں جو ہے وہ موجود ہیں اور ان کی حفاظت جو ہے وہ کر رہے ہیں ان کے بقول، لیکن جو انتظامیہ ہے ان کے جانب سے جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک شخص کو جو ہے وہ محفوظ مقام پر جو ہے وہ منتقل کرنا ہے۔ اگر ہم دن بھر کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے بھی جو ہے وہ ملتان کا دورہ کیا گیا ہے، ہیڈ محمد والا پر ان کو جو ہے وہ بریفنگ دی گئی، ان کو بتایا گیا جو بریچنگ پوائنٹ ہے اس کو کب یوٹیلائز جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس تناظر میں تو مریم نواز کی جانب سے جو ہے وہ سیلاب متاثرین سے بھی جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ وہاں پر کی گئی، تمام جو وہاں پر کیمپس لگائے گئے تھے ریسکیو کے ہوں یا دیگر اداروں کے ہوں، ان کو بھی مریم نواز کی جانب سے جو ہے وہ وزٹ کیا گیا، اور تسلی بخش انتظامات پر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار بھی ان کی جانب سے جو ہے وہ کیا گیا۔ ایک چیز جو مریم نواز کے دورے کے دوران جو دکانیں بند کی گئی تھی اس پر انہوں نے جو ہے وہ ناراضی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مریم نواز جو ہے وہ قاسم بیلا لنگڑیال کیمپ گئی، وہاں پر بھی بچوں سے ملاقات کی، خواتین سے ملاقات کی،
اور ان میں جو ہے وہ گل مل گئی. تو یہ آج دن بھر کی صورتحال رہی. اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے چیئرمین سینٹ جوسف رضا گیلانی نے جھوک وینس کے مقام کا دورہ کیا. یہ وہ مقام ہے جہاں سے ملتان میں سیلاب نے جو ہے وہ انٹر ہونا ہے اور وہ اس وقت ہو چکا ہے, اور پانی کا بہاؤ بھی اس وقت کافی تیز ہے. لوگ اس وقت کافی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنے پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت ہم جس مقام پر موجود ہیں, اگر آگے آ کے ہم یہ صورتحال جو ہے وہ دکھا سکیں, یہاں پر پانی ہی پانی جو ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے. ہم جس جگہ پہ اس وقت کھڑے ہیں یہ کٹاؤ ہو چکا ہے. جو لوگوں کے گھر ہیں یہ کٹاؤ کی پانی میں جو کٹاؤ ہو رہا ہے اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں. اور یہاں پر بستی کے لوگ بھی جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور جو مشکل حالات کا سامنا جو ہے وہ یہاں پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات بھی کر لیتے ہیں. کیا مسائل ہیں یہاں پر آپ کو دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ یہاں پہ تو ادھر کافی سارے حالات خراب ہیں, ادھر بہت زیادہ سیلاب آیا ہوا ہے, لیکن ہم ادھر جو ریسکیو ہے وہ جو لانچ لے کے آئے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں نا گھر میں لے جائیں, ہمیں کوئی سامان پڑا ہوا دیکھنا ہے, لیکن وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا آپ سے. وہ جن کو جانے والے ہوتے ہیں, جن کی زیادہ دعا سلام ہوتی ہے, وہ ان کو لے کے جاتے ہیں, ہمیں نہیں لے کے جاتے. ہم نے جی جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر کھانے پینے کے حوالے سے کیا مسائل ہیں یا تمام انتظامات بہتر ہیں؟ بھائی کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے, ہماری کسی نے مدد نہیں کی. ہمارے گھروں میں پانی ہے, جانور بھی ہم باندھ پہ لے آئے ہیں, کسی نے کوئی مدد بھی نہیں کی ہے. جی ہم اپنی مدد آپ کر رہے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقام پہ جا رہے ہیں؟ جی جی کوئی نہیں آ رہا آپ کے کوئی پاس؟ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی ہاں. اچھا, اس وقت جہاں پر ہم موجود ہیں یہ پیچھے سارا پانی ہی پانی ہے. جی جی. کتنی گھر ہیں, کتنے بستیاں ہیں یہاں پر؟ لاکھ والے بستی میں کسی نے کوئی مدد نہیں کی. ہم ادھر کے رہنے والے ہیں لاکھ والے کے. جی میں نے آج کشتی والے ڈھونڈے ہیں, ادھر بھانجے کو بھیجا ہے لانج والے کو, بھائی لے آئے, ہم نے کچھ سامان لے آنا ہے, ہماری کسی نے مدد نہیں کی ہے. جی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ انتظامات تو بہتر بتایا جا رہا ہے. آج مریم نواز خود آئی, انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا. ادھر تو نہیں آئی نا. آپ کے پاس یوسف رضا گیلانی صاحب ابھی پہنچے تھے یہاں پر؟ بس آئے تھے, ہمیں تو نہیں ملے. آپ کو نہیں ملے؟ سیلاب والوں کو بالکل نہیں ملے, سیلاب والوں کو نہیں ملے. وہ آئے ہیں جن سے ان کی دعا سلام تھی, ان کے ساتھ دعا سلام کیا, پھر چلے گئے بس. ٹھیک ہے. جو ان کے ملنے والے ان کے پاس آتے ہیں, باقی ہم غریبوں کی کون کتنے لوگ ابھی بھی اندر پھنسے ہوئے ہیں؟ کافی لوگ پھنسے ہوئے ہیں. جی جی, ابھی وہ بن مار رہے ہیں, گھروں پہ آئے. خود نہیں نکل رہی ہے, آپ لوگ خود نہیں نکلنا چاہ رہے؟ کچھ نکل آئے ہیں, کچھ ادھر ہیں. جی تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پر جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ صورتحال بھی ہم جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں. کچھ جانور بھی ہم نے دیکھا کہ اندر جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کو بھی ابھی تک غالباً یہاں پر جو ہے وہ محفوظ مقامات پر جو ہے وہ منتقل نہیں کیا گیا. اگر ہم یہ زوم کر کے دکھا سکیں میرا کیمرہ مین, تو یہ آپ واضح طور پر پانی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پانی ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. طرح طرح کے کیڑے مکوڑے بھی جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں, اور کافی سنگین صورتحال جو ہے وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے. اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں, چند گھنٹوں میں سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ مزید گمبھیر بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. آپ بتائیں گے کیا انتظامات ہیں یہاں پر سیلاب کے حوالے سے؟ بھیا انتظام تو فی الحال تھیندا تو کوئی نہیں پیا. آپ جانتے تو نقصان تو صاحب بہت سارا تھیندا پیا اچھی طرح. اتنا نقصان تھیندا پیا, جانی نقصان ہی جڑے شدے بندے دے مال ہیں وہ لٹتے پین. بہت سارے نقصان تھیندا پیا. حالی تھوڑی تو کوئی شے اتوں تھوڑی پھیر پھور کے تے ولدے واپس چلن ویندے. کوئی امداد کوئی نہیں ہوندی پئی کہنا. دورے کرنے تے پین جگ دور تے کرنے پین تے پھر حالی آ وانج جن تے جویں تروڑ کر دیندے تے وال بندہ کوئی بچ ونجے ایتھوں. تے بلکہ جنہاں دے مکان سیان تھیندے پین وائیاں دے, وہ تو چلو پہلے وائیاں دے جڑے گھر دے نقصان زیادہ تھیندے پین, بہتر یہ تھیندے پین. کافی نقصانات ہیں, کافی نقصان تھیندے پین. اللہ بہتری کرے سے صحیح. کیا مطالبہ ہے؟ کوئی مریم نواز تو آدھی پی ہے کہ بالکل آدھی بے تروڑے سوں انہوں نے تروڑا نہیں حالی تھوڑی. اچھا, اگر وہ بند توڑ دیتا وننے تو وات اے بستی محفوظ تھی محسوس ہی بچ سکتی ہیں. تے نہ توڑن دا ول تے نقصان ہی ہے. جتنے شد تلو والی نقصان ہے اتنے نقصان ہے جڑے. مریم نواز صاحب نے جو فنڈ بھیجا یا ونڈا وغیرہ چارہ وغیرہ کسی کو نہیں ملا. ان دے وچ نا 1 کلو فی بندے نو دیندے پن. جڑے بندے دے 20 ڈنگر ہوون تے اس نو 1 کلو چارہ ملے, او کیڑے کیڑے ڈنگر نو پاوے. اچھا, ایک بندے نو یہ ایک شناختی کارڈ دے بدلے؟ جی جی, ایک شناختی کارڈ دے کتنا ملدا پیا؟ 1 کلو. 1 کلو بس صرف. تے او جانور باقی جڑے انہاں سکول دے وچ کیمپ لائے ہوئے وہ آدھن بھائی اپنی عورتاں اپنے بچے لے کے اتنے سکول دے وچ آؤ,
ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਹੱਥੇ ਦੇਵਣਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਮਗਰਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਘਰ पीछे कितना रह गया पानी है? ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ 4 ਦਫਾ ਟੋਰ ਤੇ ਗਿਆ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਬਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮੈਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੜੇ। अच्छा खुद है? खुद है। किवें आए वो? ਉਹ ਟਿਊਬ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ठीक है। ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਚੱਲਦਾ ਪਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਚੱਲਦਾ ਪਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ हमने भी कहन नहीं लाया। कितने कितने लोग मुतासिर जड़े थे नहीं जी कितने लोग मुतासिर थे नहीं काफी लोग मुतासर हैं। क्या क्या ये सब क्या ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾਈਂਦੇ ਖੜੋਤੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਦੇਵਣੀ ਸਾਨੂੰ क्या मसाइल है क्या? ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰਕੁਨਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜਾ अच्छा 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 ये इस वक्त जो है वो काफी गमो गुस्से का शिकार भी जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो यानी कि जो दावे किए जा रहे हैं वो हुकूमत जो है उस पर अमल दरामद नहीं कर पा रही। नहीं कर रही कोमल तरमल नहीं कराई जब करे रहा तो सब दसना सही सारा कुछ सारे ठीक है नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। एक तरफ इंतजामिया जो है वो यहाँ पर बेहतरीन इंतजामात के जो है वो दावे कर रही है। खैर इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजामात किए भी गए हैं, जिस पर वज़ीर आला ने भी जो है वो इंतजामिया को शाबाश भी जो है वो दिया। तो ये सूरत हाल है, यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी गम गुस्से का शिकार भी जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये एक शख्स इस वक्त हम दिखाएं, मेरा कैमरामैन दिखाएं, जिनका भी बताया जा रहा था कि ये इंतज़ार जो है वो करता रहा है। ये ट्यूब इन्होंने पहनी हुई है, ये अब निकल कर जो है वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं। इनसे भी बात करते हैं कि ये कैसे इस यहाँ तक जो है वो पहुंचे हैं। आपको कोई लेने के लिए नहीं आया? नहीं, ठीक है, आप इस ट्यूब की मदद से जो है वो बिल्कुल इसे ट्यूब की वजह से हाँ। तो मोबाइल कैसे बचाया आपने? ये छापर है बांधते तो फेरते बदे अच्छा, हाँ हाँ। ये कितना गहरा पानी है? गहरा तो बड़ा है, तकरीबन 8 फुट है। 8 फुट है। हाँ ते तैरना आवे ना ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ तरना आवे ना। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं सुबह तो उत्थे बैठा मैं ते हुण आया, तकरीबन दीगर जान मैं उत्थे पानी वड़ा ते हुण निकला। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਵੜਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ? नहीं हुण नहीं वड़ना। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ? नहीं ਹੁਣ ਉਤੇ ਮਤਲਬ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਇਜ਼ਾਫਤ ਇੰਨਾ ਪਿਆ आ इजाफा होंदा पे जाई डांडियां वैंदियां सारी। ਤੇ ਹੁਣ खतरनाक हो गई है। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये कैमरामैन मेरा अगर दिखा सके तो ये सूरत हाल है। इस ट्यूब के जरिए जो है वो यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं। तो ये अगर सारी ये ट्यूब पंचर हो जाती तो ये बंदा तो जिंदगी से हाथ धो बैठता ना। 4-5 बार मैं गया हूँ रेस्क्यू 1122 वालों के पास कि मेरे भाई को ले आना है, उन्होंने हमारी मदद ही नहीं की। उन्होंने कहा नहीं अब हमारा टाइम खत्म हो गया है, मगरिब का वक्त हो रहा है, अब हमने नहीं जाना। अच्छा, रात को नहीं ऑपरेशन होता? कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होता? अगर रात को कोई बंदा मार रहा हो तो डॉक्टर का काम नहीं उसे दवाई दे, उसका काम तो बनता है ना दवाई यहाँ देना। पर डॉक्टर्स हैं, अद्वियात दी जा रही हैं? नहीं दी जा रही, कुछ भी नहीं दिया जा रहा? नहीं दी, बैठे हैं लेकिन कुछ लोग तो ले जाते हैं, ज्यादा बस अच्छी दवाई तो नहीं दे रहे, बस 1-2 गोलियां पड़ी दिए जी, भागो जी। जी जी ठीक है जी, ये इस वक्त सूरत हाल है जी फ्लड के हवाले से। और जो लोग हैं वो इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का शिकार जो है वो इस मकाम पर जो है वो हमें करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। काफ़ी मच्छर हैं और यहाँ पर खड़ा होना भी जो है वो एक मुश्किल सूरत हाल है। यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ लोग पानी से निकल कर आ रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने दिखाया कि एक जो ट्यूब है, जो ट्रैक्टर ट्यूब है, उसको पहनकर जो है वो लोग इस मकाम पर जो है वो आप पहुंचते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। देखना ये है कि अब इंतज़ामिया इनको किस तरीके से महफूज करती है और क्या इंतजामात जो है वो इस हवाले से किए जाते हैं। लाइट के हवाले से अगर हम मेरा कैमरामैन दिखे, क्योंकि सैलाबी इलाकों की जो लाइट्स हैं वो भी बंद कर दी गई थी, क्योंकि इनका जो बिजली का कनेक्शन है वो मुनक़ता जो है वो कर दिया गया था। तमाम इंतजामिया ने बहुत कोशिश की कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जो है वो निकाला जाए, और जो कुछ लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो हमें बाहर आते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी, अपनी मदद आपके तहत बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। सैयद ज़ुहैब बुखारी, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल। इंतजामिया का कहना है कि जिला मुजफ्फरगढ़ में 18 सरकारी फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। उन रिलीफ कैंप्स में मुतासरा आवाम के लिए आर्जी रिहाइश, खाने पीने, मेडिकल तालीम, जानवरों के लिए चारे समेत दीगर बुनियादी सहूलतें फ्राहम की जाएंगी। कंप्रीहेंसिव हाई स्कूल में सबसे बड़ा फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया। मजीद जानते हैं आमी डोगर से।
जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर जिला इंतजामिया की जानिब से सबसे बड़ा फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम किया गया है। चूंकि मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल है, तो जिला इंतजामिया की जानिब से कुल 18 कैंप्स जो है वो कायम किए गए हैं और जिला इंतजामिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर मेडिकल सहूलियात, रेस्क्यू डेवलपमेंट डबल 2, खाने पीने के साथ साथ जो बच्चों के लिए दूध के इंतजाम हैं उसको जो है वो बेहतर तरीके से सरअंजाम देने के लिए जो यहाँ पर पटवारी साहिबान हैं और तहसीलदारान हैं उनको जो है वो इंचार्ज बनाया गया। और इसके साथ ही एक और स्कूल है खुर्शीदाबाद गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ पर भी जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम किया गया है। मुजफ्फरगढ़ का ये सबसे बड़ा फ्लड रिलीफ कैंप है, जहाँ पर 850 से जायद अफराद जो है वो रिहाइश पजीर हैं, जिनका ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो बस्ती दुआबा से है। ये तमाम तर वो लोग हैं जो कि इन फ्लड रिलीफ कैंपों में जो है वो रिहाइश पजीर हैं। इनमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। क्या नाम है जी आपका, कहाँ से आए हैं? हम दुआबा से हैं, मुजफ्फरगढ़ में रियाज कर रहे हैं। हमारे पास पानी है सारा, इधर आए हैं, कैंप भी दिए हैं हमें और सहूलत पूरी दी है, सारा कुछ दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, दूध भी दे रहे हैं, सब कुछ। आप लोग कब आए थे कैंप में और आपके इलाके में सैलाब कितना आया? बहुत ज्यादा आया है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हमारा। क्या नुकसान हुआ आपका? ये फसलें भी तबाह हो गई हैं, घास वगैरह होता है, सब्जी है वो भी हो गई है, बड़ी हम परेशानी हुई हमें। बस्ती दुआबा में आम के बागात को कितना नुकसान हुआ? बहुत ज्यादा हुआ है, आम खड़े भी थे वो भी खराब हो गए, सारा कुछ खराब हो गया। अच्छा, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने लोगों के साथ यहाँ पर कैंप में आए हैं? हमारी बहुत ज्यादा फैमिली है, हमारी जो बस्ती है सब इधर ही आए हुए हैं। दुआबा जो बस्ती दुआबा के लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। इनकी जानिब से ये कहा गया है कि फ़िलहाल जो इंतजामात किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से उससे जो मुतमईन है। दूसरी जानिब ज़िला इंतजामिया की जानिब से यह कहा गया है कि सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल हो चुके हैं और रंगपुर में तबाही मचाने के बाद ये सैलाबी रेला जो है वो मुजफ्फरगढ़ शहर से जो है वो इस वक्त गुजर रहा है। और इस वक्त अगर क्यूसिक के हवाले से बात की जाए तो हेड पंजनत के मकाम पर जो पानी की आमद आज सुबह रिकॉर्ड की गई थी वो 1,85,000 क्यूसिक, जबकि अखराज जो था वो 1,70,000 क्यूसिक था। मुजफ्फरगढ़ में मुतादिद बस्तियां जो वो ज़ेरे आब आई हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुए हैं वो लोग वो बस्ती सनक्की और बस्ती दुआबा की हैं, जिनके लिए 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स जो वो कायम किए गए हैं। इसमें खास बात यह कि इन फ्लड रिलीफ कैंपों के साथ साथ जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों की तादाद जो है 106 बनती है और 170 किलोमीटर की पट्टी के अंदर जो है ये स्कूल वाक़ हैं और तमाम तर स्कूलों को 6 सितंबर तक जिला इंतजामिया की जानिब से बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जी आमिर डोकर, अपडेट करने का शुक्रिया। वासा मुल्तान की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप में पीने का साफ पानी फराहम, सैलाब मुतासरीन को वाटर बाउजर्स के जरिए पानी की सप्लाई जारी। एमडी वासा खालिद रजा खान का रिलीफ कैंप्स का दौरा, बिला तातुल पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वासा मुल्तान की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स में पीने का साफ पानी फराहम, सैलाब मुतासरीन को वाटर बाउजर्स के जरिए पानी की सप्लाई जारी। एमडी वासा खालिद रजा खान का रिलीफ कैंप्स का दौरा, बिला तातुल पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वासा की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स में पीने का साफ पानी फराहम, मुल्तान में मुतासरीन को वाटर बाउजर्स के जरिए पानी की सप्लाई जारी। एमडी वासा खालिद रजा खान ने रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। वासा सीवरेज और वाटर सप्लाई निजाम रवा रखने के लिए कोशिश कर रहा है। कैंप्स में बिला तातुल पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वासा की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स में पीने का साफ पानी फराहम। बहावलपुर के मकाम पर दरिया सतलुज में सैलाबी रैले मुस्तकिल होने लगे। गंडा सिंह पर गुज़श्ता एक हफ्ते से इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गंडा सिंह पर पानी की सतह 23.6 फीट, अखराज 3,11,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। इसी हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे रजा मलिक से। जी रजा, अपडेट कीजिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बहावलपुर में दरिया सतलुज में सैलाबी रैले मुस्तकिल होने लगे। गंडा सिंह पर एक हफ्ते से इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गंडा सिंह पर पानी की सतह 23.6 फीट, अखराज 3,11,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर 1,28,000 क्यूसिक अखराज। ऊंचे दर्जे का सैलाब गुज़श्ता 5 रोज से बरकरार। पानी की आमद 95,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मैसी साइफन पर पानी का अखराज 82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। एम्प्रेस ब्रिज पर निचले दर्जे का सैलाब गेज
10.5 फीट की हद से तजावुज। एम्प्रेस ब्रिज के मकाम से 75 से 80 हजार क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बहावलपुर के मकाम पर दरिया सतलुज में सैलाबी रैले मुस्तकिल होने लगे। गंडा सिंह पर गुज़श्ता एक हफ्ते से इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गंडा सिंह पर पानी की सतह 23.6 फीट, अखराज 3,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। बहावलपुर में दरिया सतलुज में सैलाबी रैले मुस्तकिल होने लगे। गंडा सिंह पर एक हफ्ते से इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गंडा सिंह पर पानी की सतह 23.6 फीट, अखराज 3,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर 1,28,000 क्यूसेक अखराज। ऊंचे दर्जे का सैलाब गुज़श्ता 5 रोज से बरकरार। पानी की आमद 95,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मेलसी साइफन पर पानी का अखराज 82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। एम्प्रेस ब्रिज पर निचले दर्जे का सैलाब गेज 10.5 फीट की हद तजावुज कर गया। एम्प्रेस ब्रिज के मकाम से 75 से 80,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एम्प्रेस ब्रिज के मकाम से 75 से 80,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब राजनपुर पहुंच के फ्लड रिलीफ कैंप मौजा विंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, स्टाफ की हाजिरी और अद्वियात दस्तियाबी और सहूलियात फ्राहमी का जायजा लिया। कैंप्स में ज्यादा से ज्यादा रिहायशी सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब का राजनपुर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, मरकजी मेडिसिन स्टोर, हेल्थ क्लिनिक और फ्लड रिलीफ सेंटर्स में इंतजाम चेक किए। फ्लड रिलीफ कैंप मौजाविक में स्टाफ की हाजिरी और अद्वियात का तस्वीर। अब आपको बताएं कि बहावलपुर के मकाम पर दरिया सतलुज में सैलाबी रैले मुस्तकिल होने लगे। गंडा सिंह पर गुज़श्ता एक हफ्ते से इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गंडा सिंह पर पानी की सतह 23.6 फीट, अखराज 3,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गंडा सिंह पर पानी की सतह 23.6 फीट, अखराज 3,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। बहावलपुर के मकाम पर दरिया सतलुज में सैलाबी रैले मुस्तकिल होने लगे हैं। गंडा सिंह पर गुज़श्ता एक हफ्ते से इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। रजा मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात रजा मलिक की जुबानी जानेंगे। जी रजा, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल जो है दरिया सतलुज में जो है एक्सेप्शनली हाई फ्लड है और इस वक्त जो सूरत हाल है कि दरिया में पानी मुसलसल बढ़ रहा है। और इस हवाले से बात करें अगर हम हेड गंडा सिंह वाले की, तो गुज़श्ता पूरे एक हफ्ते से जो है वो 3,11,000 क्यूसेक का जो एक्सेप्शनली हाई फ्लड है वो वहां से गुजर रहा है और उसका इखराज हो रहा है और ये पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। हेड सुलेमानकी पर बात करें तो पानी का जो बहाव और इखराज है वो 1,27,000 क्यूसेक से जो है वो बढ़ गया है। जबकि हेड इस्लाम पर भी इस वक्त जो सूरत हाल है वो पानी का बहाव जो है वो बढ़ चुका है, 95,000 क्यूसेक तक वहां पहुंच चुका है। जिसके बाद पानी ये दाखिल होता है मेलसी साइफन पर और मेलसी साइफन से ये पानी जो है वो आगे बढ़ता है और इस हवाले से ये पानी मेलसी साइफन पर इस वक्त जो पानी का बहाव है वो 82,000 क्यूसेक है। और इस वक्त जो है एम्प्रेस ब्रिज पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो पानी का बहाव है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और 70,000 से लेकर 75,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है। और इस वक्त जो यहाँ पानी की सतह है वो 10.50 फुट हो चुकी है। जिसके बाद से दर्जनों आबादियां जो मलिका आबादियां हैं वो जेर आब आ चुकी हैं। बिलखसूस तहसील सदर और अहमदपुर शर्किया की जो है आबादियां अभी भी जेर आब हैं और उनका जो सिलसिला है वो जेर आब आने का इस वजह से जारी है कि जो जिम्मेदारा बंद लोगों की तरफ से बनाए गए थे ताकि अपनी फसलों को और मवेशियों को और अपने जो घर बार हैं उसको बचाया जा सके। लेकिन ये जिम्मेदारा बंद जो है वो सैलाबी जो रेले हैं थपेट वो नहीं सह पा रहे और वो मुसलसल टूटे, जिसकी वजह से आबादियां जेर आब आने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। इस वक्त एम्प्रेस ब्रिज पर जो पानी की सतह है वो बढ़कर 10.50 फुट हो गई है। जी ब्यूरो चीफ रजा मलिक, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। दरिया सतलुज हेड इस्लाम के मकाम पर महकमा ज़राअत की जानिब से फ्री चारा कैंप कायम, सैलाब मुतासरा मवेशी पाल हजरात के जानवरों के लिए फ्री चारा दिया जा रहा है। मजीद जानते हैं जफर इकबाल भट्टी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज हेड इस्लाम के मकाम पर, तो जहाँ पर सैलाब मुतासरीन को इनको जानवरों के चारे फ्री देने के लिए जो है महकमा ज़राअत के फील्ड ऑफिसर हाफिज हसन साहब ने तमाम जितने भी मुतासरीन के लिए चारा फ्री प्रोवाइड कर रखा है। जितने भी लोग यहाँ आते हैं इनको इनके जानवरों के लिए चारा फ्री दिया जाता है। मेरे साथ हाफिज साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, कितने लोग आपके पास आए हैं, कितने लोगों को चारा दिया है और क्या क्या जानवरों के लिए आप यहाँ सहूलियत दे रहे हैं लोगों को? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पंजाब को, पाकिस्तान को इस फ्लड की आफत से महफूज फरमाए। तो दूसरी बात यह है चारे वाली, तो महकमा ज़राअत तौसी ने
फ्लड ज़दा लोगों के जानवरों के लिए चारे का इंतज़ाम किया हुआ है। हमने सुबह से लेकर अभी शाम तक 15 लोगों में चारा तकसीम किया है, तो अभी हमारे पास पड़ा है जो अब इस वक्त के बाद रात को आएंगे उनको देंगे। तो हमारा हर लम्हा फ्लड ज़दा लोगों की खिदमत के लिए हम हाजिर हैं इंशाअल्लाह ताला। जी, मेरे साथ कुछ सलाम मुतासिन भी मौजूद हैं जो अपने जानवरों का चारा लेने के लिए महकमा ज़राअत के पास पहुंचे हैं और इन्होंने इनको चारा प्रोवाइड भी किया। इनसे भी बात करते हैं। जी, आप चारा लेकर जा रहे हैं, किस हद तक खुश हैं? महकमा आपकी कितनी सपोर्ट कर रहा है इस सैलाब के इन दिनों में? जी जी, चारा सानू मुफ्ती मिला है पे असी लैते जा रहे हैं जी। बड़ा शुक्रगुजार हैं पे जी, इन्हां दी बड़ी मेहरबानी है महकमा ज़राअत की। इंतजामिया आपके लिए रात दिन बड़े बड़े अच्छे इंतजाम कर रही है। आपकी खुराक यहाँ तक कि आपके जानवरों के लिए भी चारे के इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या पैगाम देंगे आप इंतजामिया को? इंतजामिया को अल्लाह पाक इन्हों खुश रखे, अल्लाह पाक इन्हों कामयाब करे। असानू तो मुफ्ती चारा दे रहे हैं जी, भाई लै जो डंगरा वास्ते। ये सलाम मुतासिन थे जो इस आफत की घड़ी में इंतजामिया को और महकमा जो है ज़राअत के जितने भी अफसरान हैं इनको दुआएं दे रहे थे कि इस मुश्किल घड़ी में जिन्होंने हमारा साथ दिया है, हम अपने जानवरों का चारा यहाँ से लेके जा रहे हैं ताकि हमारे जानवर पेट भर के खाएंगे तो वो भी खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे। इसी वजह से मेरे साथ कुछ और भी यहाँ मुतासिन हैं जो अपने जानवरों का चारा लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये क्या कहेंगे आप? बोला कि किसी बुढ़े हैं माल के लिए पट्टे लेने आए। आपका क्या कहना है? हम अपने पट्टे मुफ्त में लेंगे। जी बिल्कुल, इनका भी ये कहना था कि हम बेहद खुश हैं इंतजामिया के और महकमा ज़राअत के कि जिन्होंने हमारे जानवर। जफर इकबाल, अपडेट करने का शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर का सैलाब ज़दा बच्चों के लिए सुपरवाइज लोधरा के खानवा घलवा रिलीफ कैंप में मुकीम बच्चों में खिलौने, किताबें और फल तकसीम। खिलौनों की तकसीम के मौके पर DPO अली बिन तारिक भी हमरा, असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी भी मौके पर मौजूद। अफसरान को खिलौनों समेत अपने दरमियान पाकर बच्चे खुशी से निहार। तहसील जतोई के शहर सुल्तान के सैलाब मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकिली जारी। इंतजामिया और रेस्क्यू की जानिब से ऐलानात के जरिए जाम हमजे वाली के मकीनों का इनखला। असिस्टेंट कमिश्नर महर साजिद इकबाल ने इनखला के तमाम हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कर लिए। कबीरवाला में इंतजामिया की तरफ से मुतासरीन सैलाब के लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स पर सहूलियात की फराहमी। DC सलमा सुलेमान, MPA अकबर हयात हराज का फाजिल शाह और सरदारपुर के कैंप्स का दौरा। डिप्टी कमिश्नर सैलाब ज़दा खवातीन में घुल मिल गई। बच्चों पर दस्ते शफकत रखा, तहाइफ दूध तकसीम। डॉक्टर सलमा सुलेमान और अकबर हयात हराज ने मुतासरा फैमिलीज के हमरा रात का खाना भी खाया। डिप्टी कमिश्नर का मुतासरा फैमिलीज से सहूलियात और जरूरियात बारे भी इस्तफसार। मुल्तान शहर में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला थम ना सका। शहरी वारदातों में लाखों नकदी और कीमती अशिया से महरूम। 24 घंटे में डकैती की 10, चोरी की 22 वारदातें रिपोर्ट। वारदातें गुलगर्ज, सिटी और कैंट डिवीजन में हुई। पुलिस ने डकैती के 10 और 22 चोरी के मुकदमा दर्ज कर लिए। मकामी पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। मकामी पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस ने डकैती के 10 और 22 चोरी के मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मुल्तान शहर में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला थम ना सका। शहरी वारदातों में लाखों नकदी और कीमती अशिया से महरूम। 24 घंटों में डकैती की 10, चोरी की 22 वारदातें रिपोर्ट। मुल्तान पुलिस के शहीद कांस्टेबल मोहम्मद शहजाद का यौम शहादत। शहीद की कब्र पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फातिहा ख्वानी और फूल चढ़ाए गए। आप 3 सितंबर 2023 को दौरान रेड मुलजिम की सीधी फायरिंग से शहीद हुए। मुल्तान पुलिस की जानिब से शहीद को खिराज अकीदत पेश किया गया। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद शहजाद ने फर्ज की अदायगी में जान कुर्बान की। मुल्तान में जानवरों का नजराना पेश किया करने वाले दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। पुलिस लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बार की जानिब से ताजियती रेफरेंस मरहूम जस्टिस अख्तर शबीर और साबिक चीफ जस्टिस मियां अल्लाह नवाज के हवाले से ताजियती रेफरेंस लाहौर हाईकोर्ट बेंच पर तयनात जस्टिस सुल्तान तनवीर की शिरकत। बहावलपुर लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बार के सदर चौधरी नदीम इकबाल की शिरकत। सीनियर वकला भी ताजियती रेफरेंस में शरीक। PCGA की जानिब से 1 माह के कपास की अदाद-ओ-शुमार जारी। 1 माह में कपास की गांठें फैक्ट्री तक पहुंची। टेक्सटाइल के इस्तेमाल में गांठें आई। स्टॉक में इस वक्त गांठें मौजूद हैं। पिछले साल की कपास की गांठें स्टॉक में मौजूद हैं। इस वक्त मुल्क में 299 कार्टन जिनिंग फैक्ट्रियां ऑपरेशनल हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 24वां इजलास। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए 112 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। सदारत चेयरमैन PNW डॉक्टर नईम रूफ ने की। चीफ मिनिस्टर लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 9 अरब 84 करोड़ रुपए। नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 2 अरब 17
15 करोड़ रुपए, साफ पानी प्रोग्राम के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 46 अरब रुपए मंजूर। सूबाई मुहतसब पंजाब ISO 9001 रजिस्टर्ड हो गया। मुहतसब पंजाब ने ISO 9001 बराए क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट हासिल किया। रीजनल ऑफिस रहीम यार खान में ISO 9001 रजिस्टर्ड होने के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद बता रहे हैं आसिम सदीक जी, आगाह कीजिएगा। मुहतसब पंजाब ने बड़ा एजाज हासिल किया है क्योंकि ISO 9001 सर्टिफिकेशन हासिल कर ली है। ये सर्टिफिकेशन हासिल करने पर रहीम यार खान सूबाई मुहतसब पंजाब के ऑफिस में, रीजन ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। एडवाइज़र सूबाई मुहतसब पंजाब अली अकबर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, बड़ा अहम चीज़ है कि आपने सर्टिफिकेशन हासिल की है, तो इस सर्टिफिकेशन को कैसे हासिल किया गया, अपना जो बेस्ट है वो कैसे दिया गया, क्वालिटी मैनेजमेंट को कैसे इंश्योर किया गया, इस सर्टिफिकेशन हासिल करने के बाद तो अदारे का जो ग्राफ है वो आप कैसे समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबाई मुहतसब आला के विजन के मुताबिक और उनकी इनोवेशन के मुताबिक और उनकी मुसलसल एफर्ट के नतीजे में ये ISO 9110 2015 इसका मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन है। इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे इसकी रिकॉग्निशन हो गई है। जो हमारा कंप्लेंट सिस्टम है वो इंटरनेशनल लेवल के तमाम जो है उसके स्टैंडर्ड जो है उसको पूरा करता है। ये मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुहतसब पंजाब उन्होंने बड़ी एफर्ट की है, बड़ी कोशिश की है और उनको वर्ल्ड लेवल पे प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया है मुहतसब इंटरनेशनल मुहतसब के वाले से। तो उन्हीं के एफर्ट के नतीजे में कामयाब हुआ है काम। तो उन्होंने उन्हीं की डायरेक्शन पे आज हमने ये फंक्शन अरेंज किया है ताकि लोगों को बताया जाए। इसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, मीडिया के लोग थे, सारी सरकारी महकमों के लोगों ने शिरकत की है। तो उन सबको बताने का मकसद ये है कि हम जो काम कर रहे हैं प्रोविंशियल लेवल पे और रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ये तमाम कंप्लेंट का जो उनकी हैंडलिंग है, उनकी डिस्पोजल है, ये अब इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक हो रही है। तो ये इस चीज़ का सबूत है ये सर्टिफिकेशन जो है कि उस स्टैंडर्ड को हमने मीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह अब मज़ीद कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर किया जाए। और एक और जो मुहतसब पंजाब ने कोशिश की है वो मोबाइल एक वैन बनाई है जो मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी और कंप्लेंट वहाँ से रिसीव करेगी। ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसके नतीजे में लोगों को डोर स्टेप पे रिलीफ मिलेगा। पहले भी मुहतसब पंजाब की डायरेक्शन पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। यहाँ जो कंप्लेंट्स आती हैं उनको कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी डिस्पोज हो और लोगों को इंसाफ दिया जाए और लोग इसमें रिलीफ महसूस करते हैं और हम अपने कारकर्दगी के हवाले से मुतमिन हैं। देखो, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो बेहतरीन है, जिसका इतराफ़ पूरी दुनिया में भी किया गया ISO 9000 सर्टिफिकेशन के बाद, तो उसको इसके एजाज़ हासिल करने की तकरीब को रहीम यार खान में सराहा भी गया है ताकि बेहतर अपनी कारकर्दगी को बेहतर जा सके, लोगों को बेहतर तौर पर इंसाफ फराहम किया जा सके। आसिम सदीक अपडेट करने का शुक्रिया। अब आपको बताएंगे कि गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान में 2 रोज़ा खजूर फेस्टिवल का आगाज। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी ने आगाही सेमिनार और खजूर की नुमाइश का इफ्तिताह किया। खजूर की नई अकसाम के स्टॉल सज के। खजूर मेले में काश्तकारों, माहिरीन, तलबा और यंग रिसर्चर्स की शिरकत। कमिश्नर का खजूर की आलमी मंडी तक रसाई का अज़्म। खजूर की जदीद बागबानी पर खुसूसी सेशन और लेक्चर्स। कमिश्नर का कहना था यह फेस्टिवल मकामी मईशत की मजबूती के लिए बड़ा कदम है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान में 2 रोज़ा खजूर फेस्टिवल का आगाज। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी ने आगाही सेमिनार और खजूर की नुमाइश का इफ्तिताह किया। खजूर की नई अकसाम के स्टॉल सज के। खजूर मेले का काश्तकारों, माहिरीन, तलबा और यंग रिसर्चर्स की शिरकत। कमिश्नर का खजूर की आलमी मंडी तक रसाई का अज़्म। खजूर की जदीद बागबानी पर खुसूसी सेशन और लेक्चर्स। फेस्टिवल मकामी मईशत की मजबूती के लिए बड़ा कदम है, कमिश्नर का ऐसा कहना है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान में 2 रोज़ा खजूर फेस्टिवल का आगाज। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां अरूज पर। मुल्तान की मार्केट्स में हर तरफ सब्ज झंडों और बैचेस और सजावट के मॉडल्स की बहार है, जहां शहरी
मोहब्बत और अकीदे के साथ खरीदारी में मसरूफ हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद। शहर ओलिया में हर सू सब्ज परचमों और रंगो नूर की बहार छाने लगी। शाहीन मार्केट में सब्ज झंडों, बैजेस, मॉडल्स और दीगर आराइशी सामान से भरे स्टॉल्स पर खरीदारों का रश बढ़ने लगा। शहरी अपने घरों, मसाजिद और गलियों को सजाने के लिए दिल खोल कर खरीदारी कर रहे हैं। महफिल मिलाद के लिए खसूसी सामान भी बड़ी तादाद में खरीदा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि जब तक जिंदा हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे। हर साल अकीदत और एहतराम के साथ ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। हमारा खुशी का दिन है, हमारे आका की आमद का दिन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबील में हम ये सामान खरीदते हैं और घर को सजाते हैं, बाहर गलियों में सजाते हैं। बच्चों के लिए ये एक बैज लिए हैं, ये वाले बैज हैं और ये स्टिकें, झंडे हैं छोटे। अभी बड़े झंडे का मैंने ऑर्डर देना है, 2 चादरें ली हैं मैंने। सबसे पहले मस्जिद को सजाया जाता है हमारे मोहल्ले में, उसके बाद फिर मस्जिद के करीब जितने भी घर होते हैं उन सबको सजाया जाता है, लाइटिंग की जाती है, झंडे लगाए जाते हैं, झंडियाँ लगाई जाती हैं और हर साल रैली भी निकाली जाती है इस खुशी में, आका की विलादत की खुशी में। दुकानदार कहते हैं हर साल जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर खरीदो फरोख्त में नुमाया इजाफा हो जाता है। ईदों की सबसे बड़ी ईद ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी ईद के तवस्सुल से हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी ईदें, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मिली और ये ईद जोश व खरोश और जज्बे के साथ मनानी चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो बुजुर्ग आते हैं, जो नौजवान मर्द और ख़वातीन हमारे पास आती हैं और बच्चों के अंदर जो जज्बा और जो जोश है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर शख्स अपने अंदाज में हुजूर से मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहा है और ये मंजर मुल्तान की फिजाओं को रूहानी रंग अता कर रहा है। ईद मिलादुन नबी दरअसल अकीदत और रोशनियों का दिन है। मुल्तान के शहरी न सिर्फ घरों और गलियों को सजा रहे हैं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिलों में ताज़ा भी कर रहे हैं। कैमरामैन फ़हीम आबिद के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। कानपुर में फरीदी जमात के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम किया गया। तमाम सियासी और दीनी जमातों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में सजादा नशीद दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कोरीजा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली और दुआ करवाई है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से दुनिया भर में तकरीबात सजाने का सिलसिला जारी। रहीम यार खान के गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नाती और तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने सरकार दो आलम नूर मुजस्सम की बारगाह आलिया में नजराना अकीदत पेश करके हाजरीन के दिलों को मुनव्वर किया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तालीमी इदारों में अशरा रहमतुल लिल आलमीन की तकरीबात जारी। रहीम यार खान के गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अकीदत व एहतराम और शानदार अंदाज से मनाया गया। महफिल मिलाद का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जिसके बाद तलबा और तालिबात के माबेन नातिया और तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। तलबा ने बारगाह रिसालत मुआब में गुलहाए अकीदत पेश करके समा बांध दिया। महफिल पाक में रहनुमा मुस्लिम लीग नून साबिक MPA चौधरी महमूदुल हसन चीमा, साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर, डिविजनल सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान मौलाना रियाज अहमद नूरी और प्रिंसिपल ख्वाजा फरीद कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद समेत असातिज़ा और तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तमाम कायनात के लिए सरापाए रहमत और उनकी तालीमात इंसानियत की फलाह बहबूद का ज़ामिन है। आज बड़ा अच्छा उनका ये इवेंट था जिसमें हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, खुसूसन किरत में, नात में और तकरीरी मुकाबलों में, और इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है उसके ऊपर रोशनी डाली और बड़ा एक अच्छा हमें मुकाबला देखने को मिला। आज के बच्चे माशाल्लाह उनकी किरत, उनकी नात ख़्वानी, उनकी तकारीर और जिस तरह उन्होंने सारा ये इवेंट पूरा किया, जो उनके अल्फाज थे, जो उनके जज्बात थे, वो वाकई काबिल कदर हैं। और इस लिहाज से भी कि उन बच्चों की अच्छे उस्तादों ने तरबियत की है, इसी वजह से वो इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया आज के सारे इवेंट में, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट
की तरफ से अहकामात की तामील में किया गया है कि हम लोग अशरा रहमतुल लिल आलमीन मना रहे हैं। उसी सिलसिले में आज गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज रहीम यार खान में तकारीरी नात ख्वानी और किरात के मुकाबले हुए, जिसमें बच्चों ने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। हमने बच्चों को ये पैगाम देना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अकीदत की तजदीद हमने कैसे करनी है। तलबा के दिलनशीन कलाम से महफिल पर रूहानी सुरूर छा गया। आखिर में नाती और तकरीरी मुकाबलों के पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात में ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान।